Welcome to the second video on I Felt a Funeral in My Brain by Emily Dickinson. एमिली डिकिंसन द्वारा रचित I Felt a Funeral in My Brain के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है. In the first video, we have seen the first two stanzas, lines 1 to 8. In this video, we shall see lines 9 onwards up to the end of the poem. That is line 20. पहले वीडियो में हमने पहले दो स्टैंजास को देखा था जिसमें कि लगभग लाइन 1 से 8 तक कवर हुई थी और अब इस वीडियो में हम 9वीं पंक्ति से लेकर के अंत तक यानी लाइन नंबर 20 तक देखेंगे. Now let us see the original text beginning line 9. कविता की मूल पंक्तियां देखते हैं. And then I heard them lift a box and creak across my soul with those same boots of lead again. Then space began to toll as all the heavens were a bell, and being but an ear, and I and silence, some strange race wrecked solitary here. And then a plank in reason broke, and I dropped down and down, and hit a world at every plunge, and finished knowing then, and finished knowing then. In the third stanza, Emily brings us to the point of understanding in continuation with the first two stanzas, in which she tells us about how she initially felt the happening of a funeral in her brain, then the mourners moving about to and fro, their treading, and finally her sense breaking through. Then she could visualize the people who were making the preparations sit down, cool and calm, to follow the further proceedings of the funeral ceremony. Then she could hear the drum beats, and finally she felt as if her mind was going numb or degenerating into insensitivity. हमने अभी तक देखा कि पहली वीडियो में शुरू के 8 पंक्तियों में एमिली ये बताती हैं कि एक फ्यूनरल, एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उन्हें अपने दिमाग में महसूस होती है, अपने मस्तिष्क में वो उसको देख पाती हैं और उसमें उन्होंने जो दृश्य देखा या इमेजिन किया कल्पनाओं में, वो ये था कि लोग फ्यूनरल की तैयारियां कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं और उनकी जो सेंसेस हैं, उनकी जो बोध क्षमता है, वो धीरे धीरे टूटती चली जा रही है. फिर जब सभी लोग बैठ गए तो उसके बाद उन्हें लगा जैसे एक फॉर्मल औपचारिक ड्रम बीट का साउंड हो रहा है
जो कि बीट 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 करता चला गया, ड्रम बजता चला गया और अंत में उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि उनके दिमाग में और सेंसेशंस आने बंद हो गए हैं, यानी कि बोध शून्यता उन्हें महसूस होने लगी। अब स्टैंजा 3 में वो बताती हैं, एंड देन आई हर्ड देम लिफ्ट अ बॉक्स एंड क्रीक अक्रॉस माई सोल। Then she has a sensation or a feeling or an imagination of the people, the mourners, the pallbearers lifting a box. And here, this box is the coffin box in which she imagines her body being lying. यहाँ वो बताती हैं कि उन्होंने कल्पनाओं में ये देखा कि लोग एक बॉक्स जिसमें उनका शव बंद है उसको उठाते हैं और एक क्रीक का साउंड उनको महसूस होता है जो कि उनके सोल के पार जाता हुआ महसूस होता है। With those same boots of lead again, then space began to toll, and she feels that the people who are moving around or performing the ceremony have worn boots of lead which are very heavy, and that heaviness, that burden could be felt by her as if they were treading on her and she was being trampled under the weight of those boots. एमिली को ऐसा लगता है जैसे कि जो उनके लीडन बूट्स हैं, शीशे के बने हुए, धातु के बने हुए बहुत भारी भरकम बूट्स हैं, वो बूट्स उनके ऊपर से, उनके शव के ऊपर से, उनके अस्तित्व के ऊपर से जा रहे हैं और वो उसके वजन के तले कुचली जा रही हैं। एंड देन स्पेस बिगैन टू टोल एंड देन शी फील्स द सेंसेशन ऑफ द स्पेस। उन्हें शून्य का अनुभव होने लगता है। एज ऑल द हेवेंस वर अ बेल एंड बीइंग बट एन ईयर, now she realizes or she feels or she imagines as all the heavens were a bell, as if she has been transported to heaven, and all around her the heavenly bells were ringing, resounding. She feels that her presence as if it was her being in heaven. यहाँ एमिली बताती हैं कि उन्हें अनुभूति होने लगती है जैसे वो स्वर्ग में प्रविष्ट हो चुकी हैं और चारों तरफ से घंटियों की ध्वनि आ रही है। एंड बीइंग बट एन ईयर, नाउ वी हैव सीन दैट एमिली हैड टेकन ऑल द सेंसेशंस थ्रू हर सेंस ऑफ हियरिंग। इस कविता में हमने देखा है कि एमिली ने जो भी बोध लिया है, जो भी संवेदनाएं ली हैं, वो अपने कानों के थ्रू ली हैं, मानो कि वो खुद भी एक कान मात्र बन करके रह गई हैं, क्योंकि कान के थ्रू ही उनको बाकी के अपने जीने मरने का बोध हो रहा है। एंड आई एंड साइलेंस सम स्ट्रेंज रेस wrecked solitary here. And she says, I and silence. Only two things were there together. And those two things were I and silence. दो ही चीजें थी वहां पर, एक मैं थी और एक सन्नाटा था। Some strange race, and as if we belonged to a strange race, a strange species. मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं और सन्नाटा हम दोनों एक अलग ही नस्ल के हैं। Wrecked solitary here. Wrecked, broken, shattered, solitary, all alone. She says that we felt wrecked and solitary at that place inside the coffin. उन्हें ये लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, टूट गई हैं, छिन्न भिन्न हो गई हैं। And then a plank in reason broke, and I dropped down and down. Here Emily says
that she felt as if a plank, a wooden plank of the coffin had creaked, had broken down, had split into two. Here she feels that the coffin had some sort of break or creak. And why that break came or why that split came, the reason was that the reason, the wisdom, the mind, the intelligence, the logic, this thing, something like this had started coming into her being. उन्हें लगा कि विवेक का प्रवेश हुआ है और उससे उनके कफन का पट्टा जो लकड़ी का था उसमें अचानक से टूटने की या चटकने की फीलिंग उन्हें आती है. एंड आई ड्रॉप्ड डाउन एंड डाउन. और इसी प्रक्रिया में मैं नीचे की ओर जा रही थी. एंड हिट अ वर्ल्ड एट एवरी प्लंज एंड फिनिश्ड नोइंग देन. एंड शी सेज, and I hit a world as I went down and down. I hit a world at every plunge. The more I went down, the more I entered into knowing another world. जैसे जैसे मैं नीचे गई वैसे वैसे मैं एक नई दुनिया से परिचित होती चली गई. And finished knowing then. And finally a stage came when I finished knowing, when there was nothing more to know. I had known almost everything that was to be known between life and death. मुझे यूं लगा जैसे ही मेरे ताबूत ने मेरे कब्र के फर्श को स्पर्श किया. मुझे लगा जितना जानना आवश्यक था उतना मैं जान चुकी हूं. और उसके बाद फिनिश्ड नोइंग की स्टेज आ गई. जानना बंद हो गया. अब मुझे और बोध की आवश्यकता नहीं है. देन यहां एक अधूरेपन पर एमिली ने अपनी पोएम को क्लोज किया है. शी हैज लेफ्ट द पोएम एट अ place where we have a feeling of incompleteness, but this is the style of Emily, that she leaves things to the reader to think. ये उनकी लेखन शैली है जिसमें वो पाठक को या आलोचक को सोचने के लिए अधूरी पंक्ति छोड़ देती हैं. Let us see the glossary of words and phrases. अब हम वो शब्द और वाक्यांश देखते हैं जो इस कविता के दूसरे भाग को समझने के लिए आवश्यक है. एंड देन आई हर्ड देम लिफ्ट अ बॉक्स. इन हर इमेजिनेशन एमिली हियर्स द पीपल लिफ्ट द कफिन बॉक्स. अपनी काल्पनिक और आभासीय स्थिति में एमिली को ऐसा लगा जैसे उपस्थित लोगों ने ताबूत को ऊपर उठा लिया हो. एंड क्रीक अक्रॉस माई सोल. शी फेल्ट अ स्क्रीचिंग और स्क्रैपिंग साउंड पासिंग राइट थ्रू और अक्रॉस हर सोल. दिस सिग्निफाइज दैट शी इज विजुअलाइजिंग हर ओन फ्यूनरल. एमिली को अपनी आत्मा के मध्य से गुजरता हुआ एक तेज स्वर का अनुभव हुआ, मानो आत्मा से घर्षण करती हुई कोई ध्वनि जा रही हो. इससे पता चलता है कि एमिली ने स्वयं ही के अंतिम संस्कार को अपनी आभासीय स्थिति में देखा है. बूट्स ऑफ लेड, heavy and burdensome footwear as if made of heavy metal lead. भारी और वजनदार जूते ऐसे लग रहे थे जैसे शीशे जैसी भारी धातु से बने हों. Then space began to toll. The speaker feels
as if she is now traveling through space. कवयित्री को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रिक्त स्थान अथवा शून्य की यात्रा पर हो. As all the heavens were a bell, Emily realizes that she had reached heaven, and as a token of reception, heaven is ringing bells to welcome her. एमिली को आभास होता है कि वो स्वर्ग पहुंच गई हैं और उसके स्वागत स्वरूप स्वर्ग में घंटियां बजाई जा रही हैं. And being but an ear, she feels her existence is no more than an ear, because she cannot see anything around but can only hear and interpret the sounds audible to her. एमिली को लगता है कि उसका अस्तित्व एक श्रवण यंत्र से अधिक कुछ भी नहीं, क्योंकि वो आसपास का देख नहीं पा रही है, केवल एक कान बनकर ध्वनियों को सुन पा रही हैं. And I and silence. She experiences a strong affinity with silence, as if they exist as a duo. वो शांति या सन्नाटे के साथ एक घनिष्ठता का अनुभव कर रही हैं, जैसे उसकी सन्नाटे के साथ जोड़ी बन गई हो. Some strange race, a race that is not human, it's something else. एक नस्ल जो मनुष्य की नहीं है, कुछ और ही है. Wrecked, exhausted, worn out, totally shattered. पूरी तरह से चौपट हो चुका, विनाश हो चुका, नष्ट या बर्बाद हो चुका, चट्टानों पर टक्कर खाकर नष्ट हो चुका. यहां एमिली को लगता है कि उनका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से रैक हो चुका है, पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है, पूरी तरह से चौपट हो चुका है. सॉलिटरी, लोनली, अलोन, अनसोशल, एकल, अकेला, समाज से कटा हुआ. यहां एमिली को अपना अस्तित्व सॉलिटरी दिखाई देता है. वी सी दैट एमिली feels that she is in solitude. She is in a state of loneliness. And then a plank in reason broke. A part of her coffin breaks due to reason. She becomes aware of the fact that the funeral she has been imagining hitherto is nothing but her own funeral. ताबूत का एक लकड़ी का पट्टा ज्ञान और विवेक की ऊर्जा से टूटने लगता है, चटकने लगता है. उसे बोध होता है कि अभी तक कल्पनाओं में होने वाला अंतिम संस्कार उसका स्वयं का ही अंतिम संस्कार है. And I dropped down and down. She begins to degenerate and lose all sturdiness. वो अचानक से क्षीण होने लगती हैं और चैतन्य और शारीरिक क्षमताएं समाप्त होने लगी हैं. And hit a world at every plunge. She hit a new world of her existence at every drop or dive into the unknown world.
चेतना के हर पतन पर वो अपने अस्तित्व की एक नई दुनिया में डुबकी लगा रही थीं। जैसे जैसे ताबूत कब्र की जमीन को छूता जा रहा था, वैसे वैसे उनका परिचय एक नई दुनिया से होता जा रहा था जो कि इस दुनिया से परे थी। एंड फिनिश्ड नोइंग देन, as her coffin touched the ground of the grave, she had almost known all that she deserved to know. It was a state of complete realization of the fact that she had visualized her own death. जैसे ही ताबूत ने कब्र के धरातल को छुआ, उसे वो सब पता हो गया जो होना चाहिए था, जैसे कि यह उसकी अपनी मौत का अनुभव था, कल्पना नहीं। यहां हम देखते हैं कि एमिली डिकिंसन ने अपनी कल्पनाओं से जो बात शुरू की थी, उसे वो एक वास्तविक रूप देने की कोशिश करती हैं। We see that the poem had begun with imagination, with an element of fantasy, and by it slides into a state where the poetess says that I had known all that I was supposed to know, and finally I finished knowing then. Means that there was nothing else left for me to know. This was the end of my awareness of life and death. मेरे लिए जीवन का और मृत्यु का बोध होने की ये पराकाष्ठा थी, चरम सीमा थी। इसके आगे जानने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं सर्वज्ञ हो चुकी थी। I had known everything. So this is how she winds up the poem by saying that it was a complete experience of awareness of the other world or a metaphysical state of mind. जहां वो कविता को समाप्त करती हैं, वहां वो कहती हैं, जानने जितना था मैं जान चुकी थी, इसके आगे जानने के लिए या बोध के लिए और कुछ भी शेष नहीं बचा था। This is Emily Dickinson's I felt a funeral in my brain. We have seen the whole poem in 2 videos, part 1 line 1 to 8 and part 2 line 9 to 20. यहाँ एमिली डिकिंसन की I felt a funeral in my brain नाम की कविता समाप्त होती है, जो कि 2 वीडियोस में कवर की गई है। पहली वीडियोस में लाइन 1 to 8 कवर की गई है और सेकेंड वीडियो में लाइन 9 to 20 कवर की गई है। थैंक यू, धन्यवाद।